Hello students, welcome to your channel. Please like, share and subscribe your own channel, School Studies. School Studies is pleased to announce the launch of our educational website, Patel Section. After years of hard work and dedication, we are delighted to officially announce the launch. Our goal with this website is to provide our students with an easier way to learn their lesson and prepare for exams. The new website is interactive and gives better access to NCERT Solution, GSEB Solution, Kids Zone and General Knowledge courses and quiz. Today we will see a video related to NCERT Solution for Class 9, Social Science, Geography, Chapter 2, Physical Features of India. So let's solve textbook exercise. The first question is choose the right answer from the four alternatives given below. In that the first one is a landmass bounded by the sea on three sides is referred to as. So the तीन साइड से sea के तीन साइड जो land boundary होता है उसे हम बोलते हैं peninsula. Mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with the Myanmar are collectively called. So जो माउंटेन रेंजेस है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जिसकी बाउंड्री जो है म्यांमार से है वो कलेक्टिवली वो माउंटेन्स को हम बोलते हैं पूर्वांचल. The western coastal strip south of Goa is referred to as. So the western coastal strip है south of Goa से उसे referred करते हैं as Kandin. The highest peak in the eastern Ghat is Mahendragiri. Next question, what is Bhabar? The northern plains are generally described as flatlands with no variations in its relief, but it's not true. These vast plains also have diverse relief features. According to the vibrations and relief features, northern plains can be divided into four regions. The rivers, after descending the mountains, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks. This region is known as Bhabar. जो नॉर्दर्न प्लेन है जनरली उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ फ्लैटलैंड. कोई वेरिएशन नहीं होता इनके रिलीफ में, पर ये ट्रू नहीं है. वास्ट प्लेन जो है उसके भी डाइवर्स डिफरेंट रिलीफ फीचर्स है. जैसे वाइब्रेशन जो है अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन द रिलीफ फीचर्स जो नॉर्दर्न प्लेन है वो डिवाइडेड है फोर रीजन्स के अंदर. जो रिवर आती है माउंटेन से वो डिपॉजिट करते हैं पेपल्स इनटू द नैरो बेल्ट 8 to 16 किलोमीटर्स तक और वो लाई करती है पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स और ये रीजन को बोला जाता है भाबर. नेक्स्ट, नेम द थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ द हिमालयस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयस और हिमाद्री, हिमाचल और लेसर हिमालय, आउटर हिमालयस और शिवालिक्स. सो ये तीन डिविजन है हिमालय का फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. Which plateau lies between the Aravalli and Vindhyan ranges? So that is the Malwa Plateau, which lies between the Aravalli and Vindhyan ranges. Name the island groups of India having a coral origin. So Lakshadweep Island is the island group of India having the coral origin. Now we have to distinguish between the Bhangar and Khadar. So Bhangar lies above floodplains of the river, older alluvium or old soil and forms the largest part of the northern plain. ठीक है, फ्लड प्लेन्स रीजन्स में रिवर्स के वहाँ पे जो है भांगर होता है. ओल्डर एल्यूमिनियम और ओल्ड सॉइल या तो फॉर्म करता है नॉर्दर्न प्लेन्स जो लार्जेस्ट पार्ट है इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन वो. खादर, it is a newer younger deposit of flood plains. It is renewed every year. Next, the Western Ghats and the Eastern Ghats. So the Western Ghats lies parallel to the western coast. They are continuous and can be crossed through passes only. The Western Ghats ranges elevation is 900 to 1600 meters. The Western Ghat cause orographic rain by facing the rain bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. The heights of the Western Ghats progressively increases from north to south. So Western Ghats अगर देखें तो वेस्टर्न कोस्ट की तरफ पैरेलल है, कंटिन्यूअस
और कैन बी क्रॉस्ड, उसको सिर्फ पैसेज के थ्रू ही क्रॉस किया जा सकता है। उसका एलिवेशन देखे तो 900 to 1600 मीटर्स है। जो और ग्राफिक रेंज जो है वो फेस करते हैं बिकॉज रेन बेयरिंग मॉइस्चर विंड्स जो है वो वेस्टर्न स्लोप्स की तरफ, घाट की तरफ आती हैं। जो हाइट है वेस्टर्न घाट्स का वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ईस्टर्न घाट्स देखे तो lies parallel to the eastern coast. There are discontinuous and irregular. The eastern Ghats are descended by rivers flowing into the Bay of Bengal. The eastern Ghats average elevation is 600 meter. Next question: which are the major physiographic division of India? Contrast the relief of Himalayas region with that of the Peninsula Plateau. So the major physiographic division of India are Himalayan mountains, the northern plains, the Peninsula Plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. The contrast of the relief of Himalayan regions and the Peninsula Plateau: geologically, the Peninsula Plateau constitutes only one of the ancient landmasses on the Earth's surface. It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas are the most recent landforms. From the viewpoint of geology, Himalayan mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys, and vast flowing rivers. The northern plains are found formed of alluvial deposits. The Peninsula Plateaus is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising high and wide valleys. सो हिमालयन रेंज रीजन्स और पेनिसुला प्लेट्यूज जो है जियोलॉजिकली देखे तो पेनिसुला प्लेट्यूज जो है उसके अंदर एशियंट लैंड मास है अर्थ सरफेस का। हिमालयंस अगर देखे, हिमालयस जो मोस्ट रीसेंट लैंड फॉर्म्स है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी देखे तो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है फॉर्म करते हैं अनस्टेबल जोन। जो होल माउंटेन सिस्टम है हिमालय का रिप्रेजेंट करता है अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी। हाई पीक्स है, डीप वैलीज है, वास्ट फ्लोइंग रिवर्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड होता है एलुवियल डिपॉजिट में, और पेनिसुला प्लेट्यू जो है कंपोज करता है इग्निशियस और मेटाफोरिक रॉक से, जहाँ पे जो है राइजिंग हिल्स और वाइड वैलीज है। Next, give an account of the northern plains of India. Northern plains are the most recent landforms, and northern plains are formed of alluvial deposit. Northern plains have been formed by the interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Gangas, and the Brahmaputra, along with their tributaries. This plain is formed of alluvial soil. The depositions of aluminium is a vast basin lying at the foothills of the Himalayas over millions of years formed their fertile plain. It spreads over an area of 7 lakh square kilometer. The plains above been about 2400 kilometer long and 240 to 320 kilometer broad. It is a densely populated physiographic division with a rich soil cover combined with an adequate water supply and favorable climate. It is a agriculturally productive part of India. नॉर्दर्न प्लेन देखे तो मोस्ट रीजन लैंडफॉर्म है। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो फॉर्म करता है एलुवियल डिपॉजिट। थ्री मेजर रिवर सिस्टम है, इंडस, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र, उनके ट्रिब्यूटरीज के साथ। जो प्लेन है फॉर्म करता है एलुवियल सॉइल्स, वहाँ पे डिपॉजिट होते हैं काफी एलुवियम जो कि फुट हिल्स ऑफ हिमालय से आते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स से फॉर्म्ड होते हैं, इसके लिए वो उसको फर्टाइल बनाता है। जो एरिया है वो स्प्रेड है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, और प्लेन जो है 2400 किलोमीटर लॉन्ग और 240 टू 320 किलोमीटर ब्रॉड है, जो कि थिन डेंसली पॉपुलेटेड है, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, सॉइल कवर कंबाइंड जो करता है, वाटर सप्लाई बहुत है, फेवरेबल क्लाइमेट है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया है वो। जो नॉर्दर्न प्लेन है ब्रॉडली डिवाइडेड इन 3 सेक्शन में। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर्ड टू एज अ पंजाब प्लेन्स formed by the Indus and its tributary. ठीक है, जो लार्जर पार्ट है ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे झेलम एंड जिनाब, द रिवर, द रवि, द बिनर एंड द सतलुज, ऑल ये सब ओरिजिनेट करते हैं हिमालय में से। द सेक्शन ऑफ हिमालय जो डोमिनेट बाय द दो गंगा प्लेन जो एक्सटेंड करता है बिटवीन द घाघर एंड द तिस्ता रिवर्स।
और वो स्प्रेड करता नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड पार्टली झारखंड। जो गंगा प्लेन है वो एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स बंगाल टू इट्स ईस्ट। फर्दर ईस्ट के अंदर इन आसाम ब्रह्मपुत्र प्लेन है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लैट प्लैंट्स विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, बट वो एग्जैक्टली ट्रू नहीं है। वहाँ पे वास्ट प्लेन है, हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स हैं, और वो वेरिएशंस हैं उनके, डिफरेंट वेरिएशंस हैं उनके रिलीफ फीचर्स में। जैसे नॉर्दर्न प्लेन जो है 4 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है। द रिवर जो कि माउंटेन्स में से लेके आती है डिपॉजिट पेपल्स, और वो नैरो बेल्ट 8 to 16 किलोमीटर्स तक लाइज करता है इन द शिवालिक, जिसको हम बोलते हैं भापर, जो हमने अभी लास्ट आंसर में पढ़ा। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स है जो कि रीइमर्ज करती है एंड क्रिएट करती वेट, स्वेपी एंड मार्शी रीजन, जिसको हम बोलते हैं तेराई। ठीक है, और दिस वाज वंस अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। तेराई जो है काफी पॉपुलेटेड थिकली फॉरेस्टेड रीजन था, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ थे वहां पे। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। द इंडियन डेजर्ट, जो इंडियन डेजर्ट है लाइज करता है टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ठीक है, अनड्यूलेटिंग सैंडी रिप्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, पूरा सैंड ड्यून से, मिट्टी से छोटे छोटे माउंटेन्स जो है क्रिएट होते हैं। ये रीजन जो है रिसीव करता है लो रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल यहाँ पे होता है बिलो 150 mm हर साल। एरिड क्लाइमेट है विद लो वेजिटेशन कवर। स्ट्रीम्स जो है अपीयर करता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, soon after they disappeared into the sand as they do not have enough water to reach the sea. Luni is the only large river in this region. Next, the Central Highlands. Central Highlands or Deccan Plateau. The part जो पेनिसुला प्लेट्यू lie to the north of the नर्मदा रिवर, वो कवर करता है मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेट्यू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वाइडर है इन द वेस्ट बट नैरो है ईस्ट के अंदर। ईस्टवर्ड्स एक्सटेंशन ये प्लेट्यू का लोकली उसको बोला जाता है बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स करता है फर्दर ईस्टवर्ड्स एक्सटेंशन, और वहां से वो ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। नेक्स्ट, द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। तो लक्षद्वीप आइलैंड है। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है कंपोज है स्मॉल कोरल आइलैंड से, जो है अर्लियर उनको बोला जाता था लाकद्वी, मिनिकोय एंड अमिद्वी। 1973 में ये जो है रीनेम्ड किया गया एज अ लक्षद्वीप। 32 स्क्वायर किलोमीटर स्मॉल एरिया कवर करता है। कवारती आइलैंड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। यहाँ पे आइलैंड ग्रुप जो है ग्रेट डाइवर्सिटी है, वहाँ पे फ्लोरा एंड फ्योना बहुत ज़्यादा है। पीडी आइलैंड जो है अनहैबिटेटेड है, वहाँ पे सिर्फ बर्ड सेंचुरी है। अंडमान निकोबार आइलैंड देखे तो इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स है जो कि लोकेट है बे ऑफ बंगाल में, टू एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पे लोकेटेड है। बिगर साइज एंड द मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है 2 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर है, एक तो अंडमान इन द नॉर्थ एंड निकोबार इन द साउथ। ठीक है, इट इज बिलीव, ये बिलीव किया जाता है कि ये आइलैंड जो है इवेल्युएटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन्स के अंदर है। ये आइलैंड ग्रुप जो है ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है अपनी कंट्री का। ग्रेट डाइवर्सिटी है यहाँ पे, फ्लोरा एंड फौना बहुत ज्यादा है। ये आइलैंड जो है लाई करता है टू द इक्वेटर और एक्सपीरियंस करता है इक्वेटोरियल क्लाइमेट, और वहाँ पे थिक फॉरेस्ट कवर भी है। So this was NCERT solution for class 9th geography chapter 2. I hope you liked my video. Thanks for watching my video. Thank you. Please leave comment, question or doubts in comment section if you have any, or you can drop a mail to us. You will find my email ID at the end of this video. You can also join us on Facebook page, follow us on Instagram, connect us on LinkedIn or tweet us on Twitter. Thanks for watching my video. Thank you.